onto function. Onto function is also known as surjective or surjection. What is onto function? Let f is any function from a to b. If a range of f is equal to codomain of f, then the function is called onto. That is, if each element of codomain is image of some element of domain, then f is a surjection. कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो. ईच एलिमेंट शुड बी इमेज ऑफ at least one element of domain, then the function is onto function. अब देखिए यहाँ कोडोमेन B है, B में 3 एलिमेंट हैं M, N, 4. M x1 का इमेज है, N x2 का इमेज है, 4 2 का इमेज है. Means each element of codomain is image of some element of domain. Therefore, this function is onto function. See this figure. Here also, codomain has only 2 elements, M and N. M is image of x1. N is image of 7, image of x2, image of 2. हमें एक एलिमेंट का इमेज है या एक से अधिक एलिमेंट का इमेज है, इससे कोई मतलब नहीं है. We have to see only one thing, whether each element of B is image of some element of A or not. यदि ऐसा है, each element of codomain is equal to is image of some element of domain, that is range is equal to codomain, then it is onto function. See in this figure. In codomain, there is one element 8 which is not image of any element of domain. So this is not onto function. In fact, such a function is called into function. लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही फंक्शन पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. onto function और it is not onto function. हमसे into नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है whether it is onto or not. It is onto, it is onto, it is not onto. What will be its mathematical definition? From our discussion, we can say a function f from a to b is said to be a surjection if each element of A of B codomain has some pre-image in A. क्या इसका मतलब हुआ? यदि B में Y है तो Y का प्री इमेज A में हो, डोमेन में हो. प्री इमेज किसे कहते हैं? यदि X का इमेज Y है तो हम कहेंगे Y का प्री इमेज X है. सपोज B में Y1 है तो Y1 हैज सम प्री इमेज. X1 का इमेज Y1 है अंडर द रूल F, तो हम बोलेंगे कि Y1 का प्री इमेज X1 है. सपोज B हैज 6 ऑल्सो, तो यदि 6 का प्री इमेज A में है तो ये onto होगा. यदि 6 का प्री इमेज A में नहीं है तो ये onto नहीं होगा. देखिए 6 का प्री इमेज x2 है, यानी x2 का इमेज 6 है, x का इमेज y है, x1 का इमेज y1 है. So each element of codomain has some pre-image in domain.
यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका यहाँ प्री इमेज ना हो। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो इसी बात को मैथमेटिकली हम यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। f from a to b is said to be onto function if any y belonging to b implies there exists some x in a such that image of x under f is y for all y belonging to b, then function is onto. To show a function to be surjective onto, following steps are involved. First case, show that range of f is equal to codomain of f. यदि हम किसी तरह से दिखा दिए कि रेंज ऑफ f इक्वल है कोडोमेन ऑफ f के, देन इट इज ऑन टू। सेकेंड केस जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज है कि f यदि फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो वी विल टेक एनी एलिमेंट y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन b। हम b का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y ले लेंगे और मानेंगे कि देयर इज सम x whose image under f is y, that x is in a or not doesn't matter. We have to just assume that there is some x whose image under f is this element y. Now assume x is any element, अभी हमने बताया, whether it is in domain of f or not, no matter, and suppose y is equal to fx. ये मान ली ये y कोडोमेन का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है एंड देयर इज सम x whose image under f is y. Put value of fx as per the definition. जो भी फंक्शन डिफाइंड है उसके अनुसार fx का कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू होगा, रख दीजिए। नाउ एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन लगाने के बाद हम हमेशा x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y. Now if for all values of y belong to b, the values of x obtained from this equation x is equal to gy are in a, then f is onto. If there exists any y in b for which x obtained from this, जो ऊपर में हमने ऑब्टेन किया, does not belong to a, then f is not onto. ये एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा अभी। Let f is a function from n to w. n is set of all natural numbers and w is set of integers. The function is defined as follows: fx is equal to x minus 1. Examine f is surjective or not, onto or not. तो let y belongs to w. जैसा कि अभी थ्योरी हमने डिस्कस किया, वी विल टेक एनी एलिमेंट y ऑफ कोडोमेन, लेट y बिलोंग्स टू w, और एज्यूम करेंगे कि लेट x इज एनी एलिमेंट सच दैट fx इज इक्वल टू y. हम ये नहीं कह रहे हैं कि x डोमेन में है या नहीं, जस्ट एज्यूम करना है कि x इज एनी एलिमेंट हुज इमेज अंडर f
इज y। और अब fx का वैल्यू रखिए, व्हाट इज fx, x माइनस 1 इक्वल टू y। और इस स्टेप में चाहे एक्सप्रेशन कुछ भी हो, हमेशा हम लोग एक्सप्रेस करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y। सो वी कैन राइट x इक्वल टू वाई प्लस 1। यह स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे तो ये चीज़ लाना रहता है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ना x इक्वल टू वाई प्लस 1, क्या इसका मतलब हुआ? इफ y इज इन w, then what is y plus 1? x is equal to y plus 1 and y is some whole number, then what will be y plus 1? Necessarily a natural number। क्यों नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, क्यों नहीं होल नंबर बोल रहे हैं? क्योंकि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। y इज a whole number, so the minimum value of y is 0, and if we take y is equal to 0, then 0 plus 1 is 1, a natural number. So for each y belonging to w, x will be some natural number, and what is value of x? It is y plus 1। आप डिफरेंट y यहाँ लेते जाइए, डिफरेंट x आपको मिलते जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए इन दिस फिगर, इफ वी टेक y इन w, देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस y वी विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल नंबर x इन डोमेन। y in domain because value of x is y plus 1 and y plus 1 is a natural number. So for each y belonging to w codomain, we will get a x in its domain whose image will be y। अब देखेंगे इमेज ऑफ x y होगा। The least value of y in w is 0 and x is 0 plus 1 1, और 1 इसमें है। इसके बाद यदि आप y का वैल्यू कुछ भी लें, 0 लिए तो 1, y का वैल्यू 1 लिए तो 2, y का वैल्यू 2 लिए तो 3, आप y का वैल्यू कुछ भी लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एक नेचुरल नंबर डोमेन में मिलेगा। हुज इमेज इज दिस? क्यों हम बोल रहे हैं कि इसका इमेज ये? आप देखिए y प्लस 1 यहाँ रखिए x के जगह, तो y प्लस 1 माइनस 1 y, सो इमेज ऑफ y प्लस 1 इज y। आप 1 रखिए, 1 का इमेज क्या होगा? f1, 1 माइनस 1 0 0। आप 2 रखिए, f2, 2 माइनस 1 1 है 1। तो हमने इनफैक्ट पाया क्या, एग्ज़ाम में लिखना इतना ही है, लेकिन समझने के लिए कि हम हमेशा कोडोमेन का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट y सपोज कर लेंगे और मान लेंगे कि देयर इज सम x हुज इमेज इज y। ये हमने किया ना कि लेट x इज एनी एलिमेंट, ये हमने नहीं कहा कि x डोमेन में है या नहीं, सिर्फ हमने कहा कि लेट x इज एनी एलिमेंट हुज इमेज अंडर f इज y। और फिर यहाँ हम चेक करेंगे, ऐसा एक्सप्रेस करने के बाद चेक करेंगे कि यह x डोमेन में होगा या डोमेन से बाहर भी जा सकता है। यदि हमेशा डोमेन में होगा देन इट इज़ ऑन टू, और यदि एक भी केस ऐसा संभव हो कि x जो है डोमेन से बाहर हो सकता है, देन द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। इन दिस केस फंक्शन इज ऑन टू, सर्जेक्टिव। टेक one more example. Here f is a function from n to n. Defined fx is equal to x plus 1. To check it is surjective or not, तो same proceeding है। Let y belongs to codomain of f and let there exist some x such that image of x under f is y। हर क्वेश्चन में प्रोसीडिंग यही होगा, ऑन टू दिखाने के लिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स
fx is x plus 1. Now express x in terms of y. Now see what we get. X is y minus 1. What is y? Y is any element of codomain. What is codomain? Codomain is set of natural number. What is the least value of natural number? 1. If we take y is equal to 1, 1 minus 1 0, x becomes 0. क्या 0 डोमेन में है? नेसेसरली नॉट. यदि ये नेचुरल नंबर डोमेन है तो x 0 यहाँ नहीं होगा. तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है कोडोमेन में, द एलिमेंट 1 हुज प्री इमेज इज नॉट इन डोमेन. मतलब डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज कोडोमेन में 1 होगा. सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव. इसी बात को हम लिख देंगे. ये हमेशा एक्सप्रेस करना है ऐसा. Clearly for each y belong to codomain, x is y minus 1, which is not in domain. क्यों? अभी बताए कि यदि y हम 1 लेते हैं तो 1 minus 1 0 is not in domain. For 1 belong to codomain, but 1 minus 1 0 does not belong to domain. y का corresponding प्री इमेज यहाँ y minus 1 है और n में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 1 है. 1 का प्री इमेज 0 मिल रहा है and we know 0 will not be in n. Therefore f is not surjective. हमें यदि कोडोमेन में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, देन इट इज नॉट ऑन टू. लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इक्वल टू 2x. एग्जामिन f इज सर्जेक्टिव और नॉट. फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए. fx इज 2x. व्हाट आर x? नेचुरल नंबर्स. Let y belongs to codomain of f. Also let there exist some x such that image of x under f is y. ये प्रोसीडिंग है हर क्वेश्चन में. Now what is fx? By definition 2x. Express x in terms of y. So what is x? y by 2. Now y is natural number. यदि आप y का वैल्यू 1 लेंगे तो x 1 by 2 क्या इसमें होगा? नॉट, नहीं होगा. तो हमें एक एलिमेंट मिल गया इन कोडोमेन हुज प्री इमेज इज नॉट इन डोमेन, सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव. देखिए यदि y है तो y का इमेज प्री इमेज डोमेन में y by 2 होगा. अब हम क्या देख रहे हैं? 1 का प्री इमेज हाफ डोमेन में नहीं है, 2 का है, 3 का नहीं है, 4 का है, 5 का नहीं है. तो 1 2 क्या यहाँ तो इन्फिनाइट ऐसे एलिमेंट कोडोमेन में हैं जिनका प्री इमेज डोमेन में नहीं है. लेकिन हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल देना है. सो रेंज इज 2 4 6 so on, which is not equal to codomain. Therefore f is not onto function. एक अच्छा एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाई इमेज ऑफ n अंडर f n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. एग्जामिन इट इज सर्जेक्टिव और नॉट. ऐसे क्वेश्चन में जहाँ एक से अधिक डेफिनेशन है थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और रफ फिगर बनाकर आपको पैटर्न देखना चाहिए. फर्स्ट वी ऑब्जर्व द पैटर्न बिटवीन इमेज एंड प्री इमेज. देखिए डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी, तो हमने ले लिया. अब 1 का इमेज क्या होगा? तो 1 एक ऑड है, ये डेफिनेशन लगेगा.
1 + 1/2 दैट इज़ 1, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2 एक इवन है, तो बाय डेफिनेशन इवन होने पर इमेज हो जाएगा n/2, 2/2 1। सिमिलरली 3 का इमेज 2, 4 का इमेज 2, 5 का इमेज 3, 6 का इमेज 3 एंड सो ऑन। क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लें, वो एक क्या डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विल बी इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। यहाँ पर दो एलिमेंट का हो रहा है, यानी एक आइडिया हमको मिल गया कि कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का, इसलिए ये ऑन टू है। अब लिखेंगे कैसे? तो ऑब्जर्व कीजिए, यहीं से ऑब्जर्व कीजिए कि यदि हम ऑड नंबर लेते हैं तो इस ऑड नंबर का प्री इमेज यहाँ क्या है? 1 से नहीं क्लियर होता है तो 3 से देखिए। यदि यहाँ 3 है तो 3 का प्री इमेज 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। 5 यदि ऑड के टर्म में सोचें तो इट इज़ 2n + 1 और 2n - 1 भी ले सकते हैं, और ये सिंपली इसका ट्वाइस, 3 का ट्वाइस। तो जो चाहिए आप ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो व्हाट शुड वी शो? वेरी सिंपल, we will show that each element of codomain is image of some element of domain। अब ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ये तो हम समझने के लिए लिखा है। एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? ये है कि लेट n इज एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब इस n के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में हमको प्री इमेज लेना है, तो दो एलिमेंट का इमेज हो रहा है, इसलिए हम 2 केस लेंगे। मान लो ऑड वाला केस ले रहे हैं, तो देखिए यदि यहाँ n है तो यहाँ 2n - 1, n = 1 लो, 2 - 1 1, 1 का इमेज 1। n = 2 लो तो 4 - 1 3, सॉरी n = 3 लो तो 6 - 1 5, 5 का इमेज 3। n = 2 लिया तो 4 - 1 3। n जो है यहाँ का लेना है कि n = 1 लिए, n = 1 लिए तो प्री इमेज क्या होगा? ये प्री इमेज बता रहा है 1। n = यदि 2 लिए तो व्हाट विल बी प्री इमेज? 4 - 1 एंड सो ऑन। सो क्लियरली फॉर each odd natural number 2n - 1 belonging to n we have images n। और दूसरा पॉसिबिलिटी भी है, यदि इवन वाला केस लीजिए तो 1 n तो 2n, 1 तो 2, 2 तो 4, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों लेना ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो फॉर each even natural number 2n belong to domain its image is n। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है कोडोमेन, इसमें 1 2 3 4 n सभी इमेज हैं डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का, और उसके लिए इतना दिखा देना सफिशिएंट। सो व्हाट वी गेट ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, thus range of f is equal to codomain of f, therefore f is surjective। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट कि क्लियरली रेंज ऑफ f is equal to codomain of f फॉर रीजन let n belongs to codomain, we have 2n and 2n - 1 are in domain whose images are n, therefore f is surjective on n। Now we will discuss bijective function। What is bijective function?
a function is said to be bijective function if it is injective as well as surjective. बाइजेक्टिव, बाई मतलब टू, जेक्टिव मतलब बोथ द जेक्टिव. तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो दोनों है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. चूँकि ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, इसलिए हम इसको सिंपली 1 to 1 ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं. Thus, to show a function to be bijective, we need to prove that the function is injective and surjective. Let f is a function from n minus singleton 1. डोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1. एंड व्हाट इज को डोमेन? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. f is defined from this set to this set. How? Fn is the highest prime factor of n. यहाँ हम डोमेन का कोई भी n लेंगे, उसका इमेज अंडर f क्या होगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, और इमेज हमेशा कोडोमेन में होगा. एग्जामिन द बाइजेक्टिविटी ऑफ f. तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी देखें. ऑब्जर्व द पैटर्न बिटवीन इमेज एंड प्री इमेज. देखिए 2 का इमेज 2 हो रहा है. बाय डेफिनीशन 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2. 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3. 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2. 5 का 5. 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3. 9 का भी 3. तो फिगर से हमको समझ में आ रहा है कि ये 1 को डोमेन में है जो किसी का इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा. फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 का भी इमेज, 4 का भी इमेज, 3 जो है 3 का भी इमेज, 6 का भी इमेज, 9 का इमेज, इसलिए 1 to 1 भी नहीं है. सो द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें और आंसर कर दें, लेकिन थ्योरेटिकली हम समझने के लिए यहाँ पर दोनों पार्ट देख रहे हैं. डेफिनीशन है Fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. फ्रॉम द रे डायग्राम वी हैव इमेज ऑफ F2 is 2, image of F4 is 2, so 2 and 4 have same images, therefore function is not injective. ये since नहीं है, ये Q नहीं है, it is since. Since elements 2 and 4 of domain have same images in codomain, therefore f is not 1 1 फंक्शन. आंसर हो गया. यदि 1 1 नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव नहीं है, यदि ऑन टू नहीं है तब भी बाइजेक्टिव नहीं है. दोनों पार्ट एग्जाम में दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं जस्ट फॉर कंसेप्ट. ऑल्सो फ्रॉम रे डायग्राम रेंज ऑफ f is x where x is a prime number which is not equal to n because 1 is not a prime number. तो हम क्या देख रहे हैं कि रेंज ऑफ f is not equal to codomain of f, so function is not onto function and hence f is not bijective. एग्जामिनेशन में ये दोनों पार्ट दिखाना जरूरी नहीं है, आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट, दोनों में से एक नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है. Second question, let fx is equal to cos x is a function from R to R. Examine f is bijective or not. तो आप सोचिए
cos x इमेज है। अब ये हम लोग पहले से जानते हैं कि एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। x का सेम वैल्यू के लिए x के सेम वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए cos सेम हो सकता है। cos का वैल्यू -1 से +1 है, लेकिन x इन्फिनाइट है, r है। तो बहुत सिंपल आंसर हम कर सकते हैं, f इज़ नॉट 1 1 वाई f0 इज़ 1, f2 पाई cos 2 पाई 1, यानी 0 एंड 2 पाई डोमेन में है। दे आर नॉट इक्वल बट देयर इमेजेस आर इक्वल, सो डिफरेंट एलिमेंट्स of domain have same image in codomain, so function is not 1 1. f is not onto, क्यों, कैसे कर सकते हैं not onto? तो रेंज इसका क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 1, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू r। हम लोग जानते हैं for all x, for all real x, for all values of x, value of cos x varies from -1 to 1. Range of cos x is closed interval -1 to 1, which is not equal to codomain, so function is not onto. तो ये ना तो 1 1 है और ना onto है, so it is not bijective. Let f is a function from set of all real numbers except 2 to set of all real numbers except 1, यानी डोमेन में सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 एंड को डोमेन में सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एंड डिफाइन लाइक दिस, एग्जामिन एफ इज बाइजेक्शन और नॉट। तो ठीक से देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं 4 मार्क्स में। सबसे पहले इंजेक्टिविटी, जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम डोमेन का कोई 2 एलिमेंट x1 x2 लेकर चले। अब x1 x2 डोमेन का है, मतलब कोई रियल नंबर है, और x1 x2 कोई भी रियल नंबर है लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावे x1 x2 कुछ भी है। और ये भी सपोज करेंगे कि दियर इमेजेस आर सेम। नाउ अप्लाई डेफिनीशन fx1, वैल्यू ऑफ x1, इमेज ऑफ x1 अंडर f, ये डेफिनीशन है। x के जगह x1 रखिए, x के जगह x1, x के जगह x1, सो व्हाट वी गेट, x1 - 1 अपॉन x1 - 2 इक्वल टू fx2, fx2 इज दिस मच, x के जगह x2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल एल्जेब्राइक प्रोसेस है, सिंप्लीफाई कीजिए, सब सिंप्लीफाई होने पर क्या आता है, ये आएगा x1 इक्वल टू x2। तो क्या हम देख रहे हैं कि x1 x2 कोई भी 2 एलिमेंट हैं डोमेन का, उनके यदि इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम हैं, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन 1 1। यही 1 1 का ही डेफिनेशन है, इंजेक्टिविटी का ही डेफिनेशन है कि वेन एवर fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे सर्जेक्टिविटी। जैसा कि बार बार बोलते आ रहे हैं कि हम को डोमेन का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेकर चले, और ये भी मान लिए कि देयर इज सम एक्स हुज इमेज अंडर एफ इज वाई, और फिर क्या करते हैं, इस डेफिनेशन से एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज एफ एक्स, x - 1 अपॉन x - 2 इक्वल टू वाई। और इस स्टेप पर हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो रफ में आप करके देख सकते हैं, ये आएगा x इक्वल टू 1 - 2y अपॉन 1 - y। अब देखिए व्हाट इज़ y, y को डोमेन का कोई भी एलिमेंट है, और जो हमारा को डोमेन है उसमें 1 नहीं है, y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, यानी यहाँ y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो 1 ही नहीं लेंगे कहाँ से, इसलिए ये वेल डिफाइंड, ये हमेशा एक रियल नंबर होगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन। हाँ, यदि y में यदि कोडोमेन में 1 होता तो हम कहते कि ये रियल नंबर नहीं है, यानी कोडोमेन में 1 है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो हम कह देते कि इट इज़ नॉट ऑन टू।
लेकिन हमारे को डोमेन में 1 है ही नहीं, y का वैल्यू 1 कभी नहीं ले नहीं सकते, और y की जगह 1 के अलावे कुछ भी लीजिए, ये हमेशा एक रियल नंबर होगा। ये अनरियल कब होता? जब डिनोमिनेटर 0 होता। यहाँ डिनोमिनेटर 0 होने की कोई संभावना नहीं है। सो फॉर ऑल y बिलोंग टू को डोमेन, हमें हमेशा एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, और ये रियल नंबर है। इट विल बी ऑलवेज इन डोमेन। तो ये सर्जेक्टिव हो गया कि हम को डोमेन का कोई भी y लेते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग हमेशा एक एलिमेंट x हुज वैल्यू विल बी दिस विल बी इन डोमेन हुज इमेज, आप देख सकते हैं इसका इमेज हमेशा y आएगा। लेकिन देखो एक केसेस और पॉसिबल है, यह दिमाग में एक खुराफात आ सकती है कि हमारे डोमेन में 2 नहीं है। यदि इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर फॉर सम y 2 हो जाए तो वो भी हम चेक करेंगे, ऐसा संभव है क्या? यदि संभव है तो ये ऑन टू नहीं है, यदि संभव नहीं है तो निश्चित रूप से ऑन टू है, तो उसको चेक करेंगे। हम मान लेंगे कि देयर इज सम y सच दैट वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज 2, तो x के जगह 2 मान लेंगे और y का वैल्यू ढूंढेंगे, देखें क्या आता है। यहाँ तक तो हो गया कि x एक रियल नंबर है, डोमेन में है। लेकिन ये केस कि ऑल्सो लेट x इज 2, हम यहाँ कह रहे हैं कि x का ये वैल्यू 2 नहीं होगा। क्यों? रीज़न दे रहे हैं कि इफ़ दिस थिंग इज 2, तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 1 इक्वल टू 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं ये बात सही है कि इसका वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। यानी को डोमेन में जितने भी y हैं, सबके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ये मिलेगा हुज इमेज अंडर f इज y। Thus x is a real number and x is not equal to 2, and for all y belong to codomain, this codomain, there exists x in domain whose image under f is y, therefore f is surjective and hence f is a bijection. Now you do your textbook question, and textbook questions I will discuss in my next session. Thank you.